Hello students, welcome to online study English medium subject English standard ninth chapter 4 A Truly Beautiful Mind part 1. This whole chapter is about one famous scientist Albert Einstein. You heard already his name, who gave lots of contribution to the whole world about theory of relativity. Here are some works which is related to Albert Einstein. Some books given here, it's related to Albert Einstein contribution. Look at the first book, Relativity. In this book, a clear explanation that anyone can understand about Albert Einstein theory of relativity. In this second book, it's a Albert Einstein autobiographical notes. Look at here in this third image, it's about Albert Einstein handwriting. And in the fourth one, it's about Albert Einstein Zurich notebook. During his college time, he studied, and that book given here, Zurich notebook. In the fourth book, The Human Side of Albert Einstein. And in the fourth one, it's a Author and Relative Set Theory by Albert Einstein. And it's the last one, Albert Einstein autograph. It means his sign. So here are some memorable things given for our knowledge. Now let's go towards the part 1, A Truly Beautiful Mind chapter. It's about Albert Einstein life. First of all, look at the Albert Einstein image, who was very famous scientist. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका बोर्न 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में उल्म में हुआ था। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का बोर्न हुआ तब उसके ऐसा कोई भी तरह का इंडिकेशंस या तो रिमार्क नहीं था कि जो ऐसा दिखाए कि हाँ उसके भाग्य में बहुत सारी सफलता या तो ग्रेटनेस लिखी हुई है। जबकि उसके अपोजिशन में उसकी मदर है, वो ऐसा सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बाय बोर्न एक ग्रेट पर्सन है। वैसा उसको सिर को देख के, उसके सर को देख के ऐसा लगता है, बिकॉज उसकी मदर का मानना ऐसा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का सर है वो बहुत ही लार्ज है, तो वो बहुत ही डेस्टाइन्ड पर्सन है। नाउ एट द एज ऑफ 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein didn't know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring, so the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अल्बर्ट आइंस्टाइन की एज जब 2.5 ईयर की होती है, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अभी तक बातें करना यानी कि बोलना नहीं सीखे थे। जब वो फाइनली बोलना सीखते हैं तो वो हर एक चीज़ को 2 टाइम रिपीट करते थे, यानी कि उसको उसकी जो जुबान है वो एवरी वर्ड्स को 2 टाइम रिपीट करती थी। आइंस्टाइन है वो नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ में कैसे रहा जाता है और क्या किया जाता है। एंड इसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके जो साथ में खेलने वाले उसके जो फ्रेंड्स थे उसको वो ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। इसलिए ये जो छोटा सा बच्चा था वो क्या करता था, मोस्ट ऑफ टाइम है वो अपने आप ही खेलने में व्यतीत करता था, यानी कि वो पर्सनली अकेला अकेला मोस्ट ऑफ टाइम है वो स्पेंड करता था।
स्पेशली अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था, यानी कि खिलौने से खेलना बहुत पसंद था। एंड खिलौने से खेलते खेलता वो इतना इंटरेस्टेड हो गया था कि वो अपनी खुद की न्यूबॉर्न सिस्टर के सामने देख के बोलता था, जिसका नेम था माजा। उसको देख के क्या बोलता था कि अच्छा है, बट ये छोटी सी जो गर्ल है वो न्यूबॉर्न गर्ल के व्हील्स कहाँ पे है, वो कैसे चलेगी, उसके व्हील्स कहाँ पे है। लुक एट हियर इन दिस इमेज, ब्रदर बोरिंग कह के उसके जो प्लेमेट्स होते हैं वो उसको बुलाते हैं। Now, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. Because his mother wanted him to, he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार क्या होता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के हेड मास्टर, इट्स मीन्स उसके जो टीचर होते हैं, वो उसके फादर को क्या बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ प्रोफेशन के तौर पे क्या चूज़ करता है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये लड़का कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने वाला नहीं है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 6 ईयर की एज पे वायोलिन प्ले करना सीखना शुरू करता है, बिकॉज उसकी मदर भी एक वायोलिनिस्ट थी। तो उसकी मदर है वो चाहती थी कि उसका बेटा भी एक बेस्ट और एक्सपर्ट वायोलिनिस्ट बने। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड वायोलिनिस्ट बनता है, और उसकी ये जो कला है वो लाइफ टाइम मेंटेन करके रखता है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन wasn't a paid pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. What happened? अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो इतना भी बैड प्यूपिल नहीं था, यानी कि इतना बैड स्टूडेंट भी नहीं था। तो वो क्या करता है कि म्यूनिक की जो नज़दीक की हाई स्कूल होती है वहाँ पे वो जाता है, कि जहाँ पे उस टाइम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली ने माइग्रेशन किया था, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ओनली 15 मंथ के ओल्ड थे, यानी कि 15 मंथ के ही थे सिर्फ वो। और ऑलमोस्ट म्यूनिक की स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो गुड मार्क्स से वो स्कोर करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल रेजिमेंटेशन से बहुत नफरत थी, और बहुत बार काफ़ी बार उसके टीचर्स के साथ क्लेश यानी कि झगड़ा भी हो जाता था। और 15 मंथ की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसको इतना स्टिफल्ड, इतना कंफ्यूज्ड फील होता है कि वो क्या करता है, अपने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ देते हैं। The previous year, Albert Einstein's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in city which was more liberal than Munich. उसके अगले साल अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स है वो मिलन रहने के लिए चले जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और उस टाइम पे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को साथ में नहीं ले जाते हैं, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़ के जाते हैं। और बहुत ही गहरे डिस्कशन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक विश होती है कि वो अपना एजुकेशन जो है उसको वो जर्मन स्पीकिंग में कंटिन्यू करे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और जर्मन स्पीकिंग के लिए वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। वो सिटी होता है वो म्यूनिक से काफ़ी ज़्यादा गुना वो लिबरल होता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत मज़ा आता है। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with walrus mustache. What happened? अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं उसको मैथमेटिक्स में वो बाय बोन एक्सपर्ट थे,
वो गॉड गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स के अंदर, बट उसका इंटरेस्ट है वो फिजिक्स के अंदर भी उतना ही गहरा था। और अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। बट साइंस के अलावा सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका इंटरेस्ट था। ये जो वॉल्रस ह्यूज मुस्टेक वाला जो यंग मैन है, उसके लिए साइंस ही सिर्फ एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं था, बट उसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो दूसरी कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड था, लेट्स सी अगो। He also felt a special interest in fellow students Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. What happened? अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका स्पेशल इंटरेस्ट दूसरी एक चीज़ में होता है, जो था उसका एक फेलो स्टूडेंट था जिसका नेम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक करके ये जो यंग लेडी थी उसको भी वो एक क्लेवर क्रिएचर मानता था, यानी कि वो लेडी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। और ये जो यंग सब होता है वो कहाँ पे आता है, स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। बिकॉज ये जो ज्यूरिख के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की काफ़ी सारी जानी मानी यूनिवर्सिटी में से एक थी कि जहाँ पे विमेन है वो अपनी ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए आती थी। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो उसको अपने ही फ्रेंड मानना शुरू कर देता है। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस मीन्स वॉट, कि ऐसे पर्सन कि जिसको आर्ट लिटरेचर और कल्चर के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मिलेवा मैरिक एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों का इंटरेस्ट सेम हुआ कि आर्ट एंड लिटरेचर के अपोज में साइंस में दोनों का इंटरेस्ट बन गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो सिमिलर कंपोनेंट या मिलेवा मैरिक में भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो भी एक फिलिस्टाइन पर्सन है, यानी कि जिसको आर्ट लिटरेचर और कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। And those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. Letters survive in which they put their affections into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग एंड उसकी फैमिली के जो लोग थे वो कॉन्स्टेंटली अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक को लेके कॉन्स्टेंटली एक कन्फ्यूज़न में थे, यानी कि उन सब की नज़र है वो दोनों पे थी, यानी कि उसके अपोज में थे। फाइनली ये जो कपल होता है वो एक लव में आज पड़ जाता है और वो सब के सब जो यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो मिलेवा मैरिक है वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और वो एक दूसरे को उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से दोनों है वो एक दूसरे को लेटर सप्लाई करना शुरू करते हैं और लेटर के थ्रू वो अपने वर्ड्स का जो वर्ड्स होते हैं उसका इजहार करते हैं और उसके साथ साथ वो अपने साइंस और साइंस के साथ साथ अपनी जो टेंडरनेस है उसका भी वो दोनों को एहसास होता है। और उस टाइम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक बात लिखते हैं, एक बात बताते हैं कि हम दोनों कितने हैप्पी एंड प्राउड फील करेंगे कि जब हम दोनों एक ही साथ साइंस पे वर्क करना शुरू करेंगे और ऐसे वर्क के नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो रिलेटिविटी के बेस पे होगा और उसका एक फाइनली विक्टोरियस कंक्लूजन आएगा, यानी कि बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। यानी कि मिलेवा मैरिक और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों अपने बारे में बताते हैं कि हम दोनों हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। दोनों है वो कितने खुश हो गए और कितना प्राउड महसूस करेंगे कि जब हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज़ पे वर्क करना शुरू करेंगे, जो चीज़ किसके बारे में होगी, रिलेटिविटी के बारे में होगी और उसका एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट विक्टोरियस कंक्लूजन आएगा, यानी कि उसका जो अंत है वो बहुत ही अच्छा होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching
assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bonn. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. What happened कि 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एज जब 21 ईयर की थी, उस टाइम पे उसका यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर लेते हैं। और आफ्टर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन उसको कोई भी तरह की जॉब नहीं मिलती है और अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक अनएम्प्लॉय पर्सन बन के रह जाते हैं, यानी कि उसको कोई भी जॉब या तो कोई भी वर्क नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। और उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एज अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क करना शुरू करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने प्राइवेट लेसन्स देना शुरू करते हैं। और उसमें वो फाइनली 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट बर्न के अंदर जो पेटेंट ऑफिस थी उसमें वो वर्क करना शुरू करते हैं। वहाँ पे उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है। बर्न के अंदर पेटेंट ऑफिस होती है, उसमें वो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट 1902 में जॉब करना शुरू करते हैं। पेटेंट ऑफिस मीन्स कि कोई भी तरह का इन्वेंशन हो रहा है, कोई भी तरह की डिस्कवरी या तो इन्वेंशन हो रहा है, तो उसका लीगली डॉक्यूमेंट्री परमिशन देना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं कि दूसरे जो भी साइंटिस्ट या तो दूसरे कोई भी लोग कोई भी तरह का इन्वेंशन करते हैं तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्री परमिशन देने का एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट वर्क करना शुरू करते हैं। जब वो ये वर्क कर रहे थे तो सपोज ऐसा मानो कि जैसे वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे थे, यानी कि उसके साथ में वो अपना वर्क भी कर रहे थे। जबकि एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ये वर्क करते करते सीक्रेटली ये इन्वेंशन पे अपने खुद के आइडियाज़ लगाना भी शुरू करते हैं। और उस टाइम पे वो बहुत ही फनी और जोकिंगली क्या बोलते हैं कि जो जॉब प्लेस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। वाई? बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो जॉब प्लेस पे वो वर्क करते थे वो उसके लिए बहुत ही इनोवेटिव था। बिकॉज उसी जगह से उसने इन्वेंशन के बारे में नए नए इन्वेंशन के आइडियाज़ उसके दिमाग में आना शुरू हो गया था। इसीलिए वो जो डेस्क ड्रॉवर यानी कि जो जॉब प्लेस था वो उसके लिए ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स था। Here, dear students, here your part 1 is over. Now let's introduce in brief whole chapter in English. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. At that time, there was no indication that he was destined to become a great man. But on the contrary, his mother thought him to be freak because he had such a large head. What happened, dear students? Albert Einstein was now 2.5 and still he couldn't talk. So you know very well that mother nature for child, it's always concern. So finally he did learn to speak, but he would say everything twice. It means uttered every words 2 times. So the other children found him rather boring, and Albert played by himself much of the time, so he loved to play with mechanical toys. When his little sister Maja was born, he thought it was a mechanical toy. It means Albert Einstein was too much interested in mechanical toy. That's why he thought it was a mechanical toy. It means he thought that his little sister looked like a mechanical toy, and he asked to her mother where her wheels were. It means where her sisters instead of legs. He thought that where her wheels were. And Albert Einstein began to learn violin at the age of 6 years age. His mother wanted him to learn it, but he became very skillful in it and he maintained this skill all his time. It means throughout his life he maintained his skill
It's regarding violin pianist. Albert Einstein went to high school in Munich, it's in Germany, and he scored a good marks in almost every subject. And his favorite subjects were mathematics and physics. But what happened, dear students? His teachers had no good opinion about Albert Einstein. He often clashed with them, and he didn't like the schools extremely, where strict disciplines and all these things. So he left the school for good when he was 15. Now Albert Einstein went to Switzerland and continued his studies there. He found the atmosphere in Switzerland more liberal than that in Germany. So there accidentally, it means suddenly, he met a girl named Mileva Merrick, and Albert Einstein fell in love with her. Actually, Mileva Merrick was a very intelligent girl, and Einstein wanted to marry her after completing his studies. But what happened in 1900? At the age of 21, Albert Einstein became a university graduate. So, dear students, for 2 years he remained unemployed. He earned his living by giving private lessons. Then, in 1902, he got a job as a technical expert, and he kept working in secret at his own project. So, here our whole chapter part 1 is over. I hope so. You understand very well. Thank you.